रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम. Yeah, I mean R.D. Burman has been my mentor from my childhood, and we thought that with our all my songs, we'll also have a tribute to the great man. So धीरे धीरे वो करते करते then I was leading the group in the whole Bollywood industry, close to Lakshmikant, Pyarelal, R.D. Burman, Kalyanji, and you name the music directors in those times. आओ ना गले लगा लो ना लगे बुझा दो ना ओ जाने जा. Bollywood Monster Mashup has been a beautiful experience, one that we had not imagined, or we would like to be back again to live this energy again. Bollywood Monster Mashup, BMM, founded in 2011. It celebrates Bollywood music, dance, masti, fun, stalls, and everything it has. And it's happened in the Mississauga Celebration Square. We have special guests from Bollywood, Jolly Mukherjee and Priyanka Mitra. Welcome to the show, Jolly ji and Priyanka ji. Hello. Hello. Jolly ji, everybody knows. If we have to start the program, Chandni o meri Chandni. जी. So, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. यहीं से गाएंगे मतलब अच्छा. रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम. चांदनी ओ मेरी चांदनी. प्रियंका मित्रा जी. हाँ जी. You were a season 6 finalist in Indian Idol. हाँ जी. How that journey started and you reached to the final of season 6? I reached to the semi-finals, yes. Okay. It was a good journey and बहुत कुछ सीखा वहाँ से, बहुत कुछ जाना and उसके बाद से बस सफ़र आगे जा रहा है, चलता जा रहा है and God has been very kind. And you both, I think you are giving a tribute to the R.D. Burman in Bollywood Mashup. Yeah, I mean R.D. Burman has been my mentor from my childhood, and we thought that with our all my songs, we'll also have a tribute to the great man. And Bollywood Monster Mashup is Canada's largest free South Asian festival. So is the first time you performed in this festival? हाँ जी. Yeah. Yes. So आपसे प्रियंका जी आप बताएं कि जर्नी कैसे और ये कितना excited था Bollywood Mashup में आपका performance? Oh, it was very enthralling. बहुत ज़्यादा इतनी एनर्जी भरी हुई थी and seeing the audience in front and you know सब झूम रहे हैं साथ में तो उनकी एनर्जी से हमें एनर्जी मिल रहा था and it was amazing, simply super. आपका experience with Bollywood Monster Mashup? नहीं great. I mean ऐसे इतना बड़ा इस the organization हिसाब से जो लोगों को देखा उधर it's something is massive. उतना अच्छा ही लगेगा naturally. जॉली जी आप एक प्लेबैक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं. तो जॉली जी you started your career by playback singing और commercials के अंदर? No. Let me tell you. I started my journey under R.D. Burman. The first song that I was a part of a song which is my great memories that the main singer was Rafi Saab and I was one of the 11 chorus backing singers. Okay. That's how I started. And with the airlines also, British Airlines, actually, I'll tell you, I was selected in airlines job. And as that is the time when Indira Gandhi ji had lost the election, it was taking time for me. तो मैं ऐसे ही क्या करूं करते करते R.D. Burman के recording जाता था. And it so happened that he said, hey, why don't you make him a member? And so I said, okay. एयरलाइन वाले बुलाएंगे तब तक ये गाता रहूँगा, थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे. सो इट स्टार्टेड लाइक दैट. और फिर इतनी इंटरेस्ट बढ़ गई, देन आई स्टार्टेड आस्किंग म्यूजिशियंस हाउ टू राइट म्यूजिक एंड दिस एंड दैट. सो माई इंटरेस्ट टोटली एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट ब्रिटिश एयरवेज. एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड. देन आई वेंट इनटू एडवर्टाइजिंग. जैसे आपने लाइफ बॉय सुना होगा, है ना? तो बहुत जनों ने गाया है, उसमें मैं भी गाया हूँ. 25 साल से गाता था इन ऑल लैंग्वेजेस.
सो आज भी नींद से उठाइए तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका चीज़ याद होता है. ठीक है. सो धीरे धीरे वो करते करते देन आई वॉज लीडिंग द ग्रुप इन द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्लोज टू लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, Hadi Burman, Kalyanji, and you name the music directors in those times that I have worked with. Okay. I worked till the last movie was Dhoom 2 for Yes. Pritham. Mhm. So my journey as a playback singer started with Feroz Khan's movie under Lakshmikant Pyarelal. The film was Dayavan. तो उसमें एक गाना था, चाहे मेरी जान तू ले ले. चाहे मेरी जान तू ले. जी. We would like to hear that. वो भी चाहिए आपको? चाहिए. अच्छा. When Jolly Mukherjee is here in our studio, अच्छा. so we can't miss that. सर इसमें क्या, मैं इतने दूर से आया हूँ तो फिर गा के ही जाना पड़ेगा ना, ऐसा है ना. चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, प्यार एक बार तो दे दे, हैया हो हैया. परिंदा जैसे हो खुशबू जैसे, परिंदा जैसे हो खुशबू जैसे, के उड़ती जाए जवानी ऐसे. चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, प्यार एक बार तो दे दे, हैया हो हैया. प्रियंका जी, हाँ जी. जॉली जी से हमें तो लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. आपका जो सफर था इंडियन आइडल तक, सो आपका एक तो मेंटर कौन है म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंड हमें आपसे भी कुछ सुनना है कि इंडियन आइडल में जब आपका फाइनल सॉन्ग था वो कौन सा था? देखिए, आई विल टेल यू, इंडियन आइडल में मेरा सफ़र वाज अ वेरी स्मॉल जर्नी. तो वहाँ से जो मुझे मिला था, व्हाट वाज वेरी स्पेशल वाज आई गॉट टू सिंग इन फ्रंट ऑफ द लेजेंडरी आशा जी, बिकॉज शी हैज़ बीन माय आइडल सिंस द बिगिनिंग. तो उनके सामने खड़े होकर जब गाया, दैट वाज माय गिफ्ट फ्रॉम देयर, जो मुझे मिला है. उसके बाद से जर्नी जा रही है, मतलब काफ़ी सारे रीजनल मूवीज़ में गाए हैं, काफ़ी सिंगल्स में गाया, एंड अभी खुद के काफ़ी सॉन्ग्स हैं, वो भी सब रिलीज़ कर रहे हैं. तो आपने 8 लैंग्वेजेस से ज़्यादा में गाया? हाँ जी, हाँ जी. कौन सी लैंग्वेजेस हैं? मराठी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल एंड आई थिंक छत्तीसगढ़ी. ओके. तो इतना याद है मुझे. तो हमें आपका कोई फेवरेट बॉलीवुड से सॉन्ग हो जाए? ये एक सिंगर को ये सवाल पूछना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू आस्क. एक आपका जो भी टोरंटो की, ओंटारियो की या कनाडा की ऑडियंस तो बहुत सारा सुनना चाहती है, बट जो आपके दिल के पास हो. बिकॉज आई स्पोक अबाउट आशा जी, मैं चाहूँगी कि मैं आशा जी का ही कुछ गाऊँ. आओ ना गले लगा लो ना, लगे बुझा दो ना, ओ जाने जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ. अरे देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना पर पप देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना. Wow. Jolly ji, BMM Bollywood Monster Mashup is there since 2011. जी. Almost 17 years. It's a big journey. Right. And every year the Bollywood stars, they come here, they perform. So this year in 2026, how will you explain your experience in the BMM? Actually, I've never performed with this kind of an organization so well done, and it was great to see the entire ambience over there and the people around. ये थोड़ा सा मैजिकली लगा मुझे, जैसे टोरंटो हमेशा लगता ही है. I've been coming here. I've also performed in Maple Leaf Gardens. Okay. वो 2-3 दफे किया हूँ. अभी तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इंडियंस अभी बहुत हो गई है, तभी उतने नहीं थी. तो मगर फिर भी हम आई स्टिल रिमेंबर. सो इट इज़ एक मतलब स्क्वायर इतना ब्यूटीफुली होता है उधर, विथ स्टेज एंड एवरीथिंग इज सो
vibrant. So I was very happy, very, very happy. King of Strings. आपको King of Strings कहा जाता है. So Indian classical traditional blend with the Western arrangement. ये कैसे हुआ possible? मैं थोड़ा थोड़ा म्यूजिक कोशिश करता हूँ. तो अगर आपने हरिहरन का नाम सुना होगा, हाँ जी. वो मेरा 50 साल का दोस्त है. तो पहली एल्बम से मैं उसका अरेंजमेंट करता हूँ. दैट वाज अंडर मैग्ना साउंड कंपनी, जो वो हाजिर बोल के एल्बम किया था. तो वहाँ से मेरी अरेंजमेंट शुरू हुई थी. एंड देन ये जो आप कह रहे हैं, आई डिड ए एल्बम which was a fusion of Indian raga-based melodies, Okay. instrumental, and how will the fusion be done with Indian and a Western instrument playing Indian scales and surrounded by the symphony. That was my idea. Okay. तो वो करके लोगों को गलतफहमी हो गया कि मैं कुछ जानता हूँ, ठीक है. तो बोलने लगे किंग ऑफ स्ट्रिंग्स. ऐसा हो गया. तो इंटरनेट में जो लिखते हैं, कभी कभी वो लोग थोड़े से नहीं जान के भी लिखते हैं. तो मुझे इतना चढ़ा दिया जितना मैं हूँ नहीं. ठीक है. इसलिए आप मुझे पूछ रहे हो बात. So आपका कुछ यंग जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, यूथ, उनके लिए क्या मैसेज होगा? प्रियंका जी आपका भी, बिकॉज कभी उस्ताद नहीं मिलता एंड इतना टैलेंट है. इवन यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आए हुए हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट है. वी हैड सीन, वो लिखते भी हैं, वो गाते भी हैं, लेकिन उनको उस्ताद नहीं मिलता, लेकिन वो ट्रेनिंग पे नहीं जा सकते. बट वो टैलेंट इतना है इंडिया में, म्यूजिक इंडस्ट्री में. तो क्या आप एक उनको मैसेज देंगे? नहीं, मैसेज यही दूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जितने भी यंगस्टर को देखा हूँ, ये हमसे भी बेटर हैं. वो लोग इतने टैलेंटेड डेफिनेटली हैं, और उनको जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं तो उनको पुश करूँगा, अगर मुझे मौका मिले तो. एंड ऑल आई कैन से इज़ दैट कि डेफिनेटली हर चीज़ का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए. आजकल के हर चीज़ इजी हो गया है ना. वो मेहनत उतनी नहीं होती है. जैसे मैं पूछता हूँ तो फिर एक बच्चा बोलता है, ओ अंकल आई शो यू व्हाट इज़ ए फ्लूट. तो टू एक बटन दबाता है, टू, बोले यही फ्लूट है या यही गिटार है. तो ज़िंदगी ऐसी नहीं है. वो चीज़ जो जिन्होंने बनाया, जिसका सैम्पल्स बनाए हैं, तो वो बजाया किसी और ने ना. पहले तो ओरिजिनल चीज़ बजाएगी. तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो उनके पास गैजेट्स हैं आज, इतना कुछ उसमें कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा सा म्यूजिकल नॉलेज भी हो जाए तो दे कैन रियली रीच द स्काई, विच आई अपना फील. मेंटर या उस्ताद रखना बहुत जरूरी है. ज़रूरी तो डेफिनेटली है हर चीज़ का. आप जैसे समझो, हम लोग को कहते हैं कि भाई आप एक सेंटेंस बोलो, तो कैसे बोलेंगे? आपको ग्रामर जानना चाहिए ना. तो उसी तरह म्यूजिक करने के लिए तो पता तो चले. आपने कहाँ से? मैं तो सीखा ही नहीं. आप सबको गलत फहमी है कि मुझे खुद को जाता है. मुझे कुछ नहीं आता है. बट द पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कोई ना कोई होना चाहिए. गुरु तो होना चाहिए. गुरु बिना ज्ञान कैसे होगा? तो किसी को ज़रूरी है. आपको अगर जाना है तो गुरु को या तो आप हायर करके कर, मतलब उनको गंडा बांध के कीजिए, या फॉलो करके कीजिए, वो भी चलेगा. जैसे समझो रफ़ी साहब मेरे गुरु, मेरे सिंगर्स हैं. रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, हेमंत कुमार, मुकेश जी, ये 5 आदमी का अगर मैं गाना गा पाया सही, तो ज़रूरत ही नहीं. मैं इसमें मैं ये मानता हूँ, लता जी का, आशा जी का, इनके अगर आप गाना 10% भी गा सके कोई, तो उसको डेफिनेटली उसको मिल जाएगा कहीं ना कहीं. तो वो भी गुरु ही है, हमारे साइलेंट है. बिल्कुल. तो आपका मैसेज क्या होगा यूथ के लिए, एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो आगे आना चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री? जैसा कि दादा ने बोला कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग. मेहनत बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है. लोग आते हैं इंडियास कि अगर हमको रियलिटी शो में जाना है तो क्या करना पड़ेगा. तो गाना, सिंगिंग हैज़ बीन लिमिटेड टू हिटिंग इनटू द रियलिटी शोज़, जो कि नहीं है. तो सीखिए अच्छे से, उसके डेप्थ में जाइए, अच्छा सुनिए. जितने अच्छे आर्टिस्टों को आप सुनेंगे, लेजेंड्स हैं हमारे, जैसा ही सेड, इट्स एब्सोल्युटली राइट कि उन्होंने जो दिया है हमको, अगर हम उतना भी सुन लें, उतना भी गा लें, तो बहुत बहुत कुछ हमें वहाँ से मिल जाता है सीखने को. सो कीप लिसनिंग टू गुड थिंग्स एंड रियाज, प्रैक्टिस, लर्निंग, दैट्स इट. ठीक है प्रियंका जी, बिफोर वी लेट यू गो, आप क्या आप सुनाना चाहेंगे? मैं क्या सुनाना चाहूँगी? झारखंडिया. क्या
मैं अपना कोई गाना बिल्कुल आई कैन सिंग, Yes. सो आई लाइक टू सिंग दैट। जो मेरा सबसे पहला जो मेरा इंडिपेंडेंट रिलीज है उसके 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है। आधी आधी सेदारी हो धूप या ठंडी छाँव, तेरी मेरी जिम्मेदारी, चाहे शहर हो या गाँव, ख्वाबों का ये आशियाना, पलकों का ये शामियाना, छोटी छोटी खुशियों से हम सजाएंगे आधी आधी। 2 words वाह। बॉलीवुड मैशअप के लिए। Bollywood Monster Mashup has been a beautiful experience, one that we had not imagined, or we would like to be back again to live this energy again. So thank you for having us. थैंक यू। जॉली जी आप भी कुछ सेम ठीक है वो बॉलीवुड मैशअप के लिए। एक्चुअली क्या है, हम लोग वी हैव प्लेड द इनिंग्स, Yes, अब हम सिर्फ टुक कर रहे हैं, ठीक है यही है हमारे फ्यूचर। ठीक है तो इनके पकड़ के चले आएंगे ना, तो आई वुड This ऑल्सो is- लव टू बी। Typical Dada. टिपिकल दादा। बट आपको जाने से पहले कुछ ना कुछ गुनगुनाना पड़ेगा। पड़ेगा। हे भगवान क्या करें। चलिए, एक मैं जैकी श्रॉफ का एक गाना किया था संगीत फिल्म से, सुनो हसीना काजल वाली हैं। सुनो हसी, क्या थोड़ा सा उम्र भी हो रहा है ना सर, हैं, इसलिए मैंने बोला, बोलते ना ते उड़ती जाए जवानी ऐसे, तो इसलिए मैं ऐसे दिखा दिया। ठीक है खैर, हाँ, सुनो हसीना काजल वाली रे, सुनो हसीना, अरे सुनो हसीना काजल वाली, मेरा पूछो पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बने जा रहा, मैं आवारा एक बने जा रहा, मैं आवारा एक बने जा रहा, हो मेरा पूछो पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बने जा रहा। वाह बहुत खूब। थैंक यू जॉली जी, थैंक यू। Thank you. Thank you so much. थैंक यू एंड वी वेलकम आपको कनाडा में। और हम चाहेंगे कि हर साल बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप और जितने इवेंट्स हैं कनाडा में आते रहे। नहीं, Thank you थैंक so यू सर। एक रिक्वेस्ट है कि हर साल मत बोलना, हर साल बुलाएंगे तो कोई आएगा नहीं। ठीक है बोला यार वैसे ही दिखता है, वैसे ही गाता है, ऐसे करने, थोड़ा गैप देके बट बुलाइए। गैप पे ना भी हो, लेकिन जो ऑडियंस है सुनने वाली, उनको तो 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, वो चाहते हैं कि हम दोबारा सुने, क्योंकि तब तक और भी क्रिएशन आप लोग, आ हाँ, जाती है। मेहरबानी आप Absolutely. लोगों की। We hope to be back वी again. होप टू बी बैक वेरी Thank you. सून। थैंक यू। Thank you. Thank you. So Bollywood Monster Mashup, don't miss every year. It's an annual festival. It celebrates Bollywood dance, masti, food, fun, festival. So every year, annual event happens in the Mississauga Celebration Square. Don't miss. It's an annual event, Bollywood Monster Mashup.